Hi everyone, myself Dr. Milind, and today's topic of discussion will be under the endocrinology series, in which we will discuss, uh, as we have already discussed, two major pituitary disorders that are one is hypoparathyroidism, that is Sheehan syndrome, और second is acromegaly. तो आज अपने हाइपर फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, दैट इज prolactinoma. I am saying functional tumors because the most common pituitary tumors are non-functional, that is non-functional pituitary adenoma. But acromegaly, Cushing's and prolactinoma are the three example जहाँ पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सिक्रीट करी, मतलब लाइक आपने हमेशा सुना होगा कि कैंसर सेल्स आर नॉन फंक्शनल सेल्स, वो सिर्फ साइज में और अमाउंट में बढ़ती रहती है. बट हियर दीज आर द बेनाइन कैंसर्स दैट आर फंक्शनल एंड दैट आर प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ हार्मोन. Here the hormone is prolactin. Why we need to know this? Because the consequences are infertility. So we need to detect it early, and it is a treatable disorder. So like देखो, the aggression of the treatment is different from Cushing's and acromegaly. Because see, देखो, ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा, इट विल कॉज यू कार्डियोमायोपैथी, इट विल कॉज एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, it will cause heart failure, it will cause diabetes, it will cause resistant hypertension. That means it is very very toxic to the body. तो आप एक्रोमेगाली को बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करते हो और आप जाके पिट्यूटरी को निकाल ही देते हो, बात ही खत्म कर दो. वैसे ही Cushing's is very very deadly for you. It causes resistant hypertension, it causes atherosclerosis, it causes type 2 diabetes, insulin resistance, it causes resistant hypertension. That is why there also you will go aggressive. It causes dyslipidemia. तो वहां के केस में भी आप क्या करते हो, यू गो फॉर रिसेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी इन कुशिंग डिजीज, आई एम सेइंग नॉट सिंड्रोम. लेकिन प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन ज्यादा होने से it will make men dry and it will make female juicy or wet. That is the most easiest way that you can remember this for your whole life. कि होता क्या है, प्रोलैक्टिन ज्यादा होने से मेल विल बी ड्राई, दैट मीन्स दे won't be a fertile, they will have impotency due to hyperprolactinemia. And in case of females, they will be wet, that means juicy. That means in the simple terms, patient female of a prolactinoma will secrete breast milk even though she is not lactating at that time, because of prolactin causing increased galactorrhea. And they will be infertile also. So infertility is common in both, but males will be dry, that means impotent, and females will be juicy, that means galactorrhea. So but आप देखोगे यहाँ किसी की जान नहीं जा रही है प्रोलैक्टिनोमा, nobody is dying of prolactinoma majorly. Because so here the approach is medical therapy, that is drug therapy rather than the surgical therapy. You do not go over aggressive, and the lucky thing is that कि यहाँ patient बहुत अच्छा respond करता है. Like as soon as you start giving cabergoline ना, तो patient will respond wonderfully, even though उसका visual loss भी हो चुका है, visual deformity भी आ रही है, तो भी आप cabergoline देते हो, the tumor shrinks very rapidly. So that is the good point of prolactinoma, that it causes problem, but it is a tumor, it is a brain tumor, but it is very very treatable with medicine, and you just need to diagnose it on time, ताकि couple भी fertile हो सके and their life become easier also. So I hope your whole picture is clear. तो सबसे पहले अपने प्रोलैक्टिनोमा में बात करते हैं. व्हाट इज प्रोलैक्टिनोमा? इट इज ए माइक्रो एडिनोमा. व्हाट इज ए माइक्रो एडिनोमा? दैट मींस ऐसा कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर जो कि 1 सेंटीमीटर से कम हो. 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, दैट विल बी माइक्रो एडिनोमा, जो कि कॉमनली केस होता है एक्रोमेगाली का. यहाँ माइक्रो एडिनोमा है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का है, और it is a functional tumor. There are two type of pituitary adenoma: functioning pituitary adenoma, non-functioning pituitary adenoma. Here I am talking about functioning pituitary adenoma. That is what the pituitary tumor is releasing prolactin. Now the other thing is कि यहाँ व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रोलैक्टिन. मैंने आपको जब पिट्यूटरी डिजीज स्टार्ट कराई थी, तब मैंने आपको बताया था कि यार पिट्यूटरी का सभी हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं
हाइपोथैलेमस के द्वारा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। लेकिन अकेला एक हार्मोन पिट्यूटरी का जो कि अंडर वेरी इनिबिटरी इफेक्ट होता है, मतलब हमेशा उसको वो रोक के रखता है, दैट इज डोपामिन। क्योंकि इट इज गुड फॉर आवर बॉडी। क्योंकि देखो मैंने हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया के इतने सारे साइड इफेक्ट बताए हैं, तो इसलिए अपनी बॉडी क्या चाहती है कि जरूरत से ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि सोचो अगर कोई स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता अपनी ह्यूमन जनरेशन के अंदर जो कि प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता, तो वी ऑल वुड बी इनफर्टाइल एंड द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विल डाई। ठीक है, इसीलिए अपनी बॉडी ने नेचुरली प्रोलैक्टिन को चेक रखने के लिए डोपामाइन बनाया, जो कि उसको स्टिमुलेट करने के बजाय इनिबिट करता है। तो डोपामाइन हैज ए इनिबिटरी इफेक्ट। तो इसीलिए आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओनली हार्मोन दैट इंक्रीजेस इफ यू कट द पिट्यूटरी स्टॉक ऑफ ए पेशेंट? द आंसर इज prolactin. It increases. And now the other thing that I want to talk to is प्रोलैक्टिन का इफेक्ट क्या होता है। एक तो ये ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होने पे इट कॉजेज डिक्रीज इन बोन मिनरल डेंसिटी, इट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। प्रोलैक्टिन ज्यादा होने के कारण females will be juicy, that means they will have galactorrhea even they are not pregnant, even though they do not have baby. Still a 25-year-old young female would come with embarrassing complaint of lactating without any cause. Another one is they just tell me which one presents earlier, a female of prolactinoma or a male of prolactinoma. Just random guess everybody. बताओ प्लीज प्लीज, कौन जल्दी आएगा, मेल या फीमेल? ऐसे मत करो। ठीक है, मेल है ना। एक्चुअल में इसका उल्टा होता है। यू आर राइट खुशबू, फीमेल प्रेजेंट्स अर्लियर बिकॉज the female may the prolactin inhibits the ovulation, so it will cause infertility. So infertility is like very very alarming for females. ठीक है, तो they immediately come to us, है ना। जो erectile dysfunction is somewhat embarrassing for most men to discuss. So usually वो कई सालों तक देसी नुस्खे में और जुगाड़ में और आपस के दोस्तों से राय में लगे रहेंगे। बट इनफर्टिलिटी इज वन सच थिंग जिसमें पूरी फैमिली में एकदम से बात आती है, तो दे इमीडिएटली कम टू यू। सो फीमेल्स यूजुअली कम विद प्रोलैक्टिनोमा फर्स्ट, और आप ओपीडी में इवन एज ए गायनेकोलॉजिस्ट यू विल डायग्नोज सो मच प्रोलैक्टिनोमा। सो इसका साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, तो इसके इफेक्ट से ध्यान रखना। इट विल कॉज लैक्टेशन इन द फीमेल्स, in the males, and it females it also inhibits ovulation, so hyperprolactinemia will cause amenorrhea, and in males it causes erectile dysfunction and infertility, and it causes osteoporosis, and in prolactinoma it causes, if severe enough, it causes uh, your osteoporosis because of decreased bone mineral density. And in cases of prolactinoma, due to the mass effect of the tumor, the young female, a 30-year-old female, will present to you with headache and vision loss. और तो विजन लॉस जो यहाँ होता है दैट इज टनल विजन, है ना। क्योंकि यहाँ टनल विजन इसमें भी मिल सकता है, एक्रोमीगैली में भी मिल सकता है। तो जो मेरे दोनों टेम्पोरल के फाइबर क्रॉस करते हैं ना ऑप्टिक कायस्मा पे, वहां ऐसी छोटी सी पिट्यूटरी पड़ी होती है। तो ये ऑप्टिक कायस्मा है और इधर पिट्यूटरी पड़ी होती है। जैसे साइज में बढ़ती है और इन ऑप्टिक कायस्मा के फाइबर की ऐसी तैसी करती है, और मेरा दोनों साइड का टेम्पोरल का विजन जाता है। और जैसे ही मेरे टेम्पोरल का विजन जाएगा, आई विल ओनली सी लाइक दिस, आई वुड नॉट बी एबल टू सी माई साइड्स। मैं सिर्फ आपको सामने देख पाऊंगा, मैं ये नहीं देख पाऊंगा। So the classical history, rarely patient, a very vigilant attendant or a patient will give you history, like a educated man of IT sector, और वो बोल रहे डॉक्टर साहब, like his friends will make fun of him, और वो आपके पास ओपीडी में आके सिर्फ एक बात बोलेगा, डॉक्टर साहब 6 महीने से सर दुख रहा है, बहुत दवाइयां ले रहा हूँ, और है ना मैं कभी चलता हूँ तो मेरे ना कंधे ऐसे दीवारों में भिड़ जाते हैं, या फिर मैं कार चलाता हूँ ना तो मेरे को सब ढंग से दिख रहा होता है, मेरी सामने कभी कार नहीं ठुकती लेकिन मेरी कार साइड से ठुक जाती है, मेरे को पता नहीं लगता। ये वेरी विजिलेंट एंड एजुकेटेड अटेंडेंट विल or patient will come you with this complaint. So that is a classical history of our tunnel vision, because
ही कैन नॉट सी द टेम्पोरल साइड, तो जो वो जब व्हीकल चला रहा होता है वो सिर्फ सामने का देख रहा होता है, कुछ भी साइड से चीज आ रही है, सामने से आ रही है, भले ही इसके साइड में स्टेशनरी पोल है, उनको दिखाई नहीं देगा एंड ही विल स्टक टू दैट। और सिमिलरली जस्ट आई एम लाइक वॉकिंग थ्रू द डोर एंड आई एम एबल टू सी व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन अगर डोर छोटी है आई विल नॉट बी एबल टू सी द साइड्स ऑफ द डोर एंड मेरा कंधा उसमें जाके बैठेगा। सो that is the classical history of tunnel vision. So you should remember that, because like once or twice in your lifetime some patient will give you a history and that will be the first symptom, and if like you diagnose that, you are a wonderful physician. So ऐसी छोटी छोटी सी पेशेंट की बातों को ध्यान से सुनने का है, you can make big diagnosis just from small clues of the patient. Now, the how will you diagnose a case of prolactinoma? The like a prolactinoma क्या केस के अंदर डायग्नोसिस इज सिंपल। यू सस्पेक्ट ए केस ऑफ प्रोलैक्टिनोमा, तो आप उसका क्या कराते हो? सबसे पहले प्रोलैक्टिन लेवल्स, सबसे पहले तो आपको उसको कराना है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि वो पेशेंट आ रही है गैलेक्टोरिया के साथ और एमिनोरिया के साथ। तो वेदर और नॉट शी सेज कि शी डज नॉट हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, शी क्या नाम यूज्ड ओसीपी, शी used barrier method, doesn't matter what says because patient always lies। आपको हमेशा उसका प्रेगनेंसी फर्स्ट रूल आउट करना है, बिकॉज टू प्रेगनेंसी के सिम्टम आ रहे हैं, वन इज गैलेक्टोरिया, वन इज एमिनोरिया। तो आपने देखा जैसे प्रेगनेंसी नहीं, द सेकंड डायग्नोसिस यू शुड थिंक ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज प्रोलैक्टिनोमा, सेकंड इज हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि प्रोलैक्टिनोमा के अंदर क्या होगा? हेडेक होगा, लैक्टेशनल लैक्टेशन ज्यादा होगा, अननेसेसरी लैक्टेशन होगा, एमिनोरिया होगा। हाइपोथायराइडिज्म में द टीआरएच इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, इट स्टिमुलेट्स प्रोलैक्टिन। तो होता क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म में, ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म टीएसएच कम होता है, उसके कारण टीएसएच ज्यादा होता है और टीआरएच भी बहुत ज्यादा होता है। तो टीआरएच स्टिमुलेट्स दैट पिट्यूटरी टू फॉर्म प्रोलैक्टिन, दैट इज, इसीलिए आपको हाइपोथायराइडिज्म फीमेल कॉमनली एमिनोरिया के साथ आती है, या तो वो एमिनोरिया के साथ आएंगे या फिर वो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आएंगे। ठीक है, तो आपने प्रोलैक्टिनोमा सस्पेक्ट करा, नाउ यू विल गेट प्रोलैक्टिन लेवल्स। जस्ट वेट ए सेकेंड। सॉरी यार। तो आप उसका क्या कराओगे? प्रोलैक्टिन लेवल्स कराओगे, और प्रोलैक्टिन लेवल्स विल बी एटलीस्ट मोर देन 100 to 200। जब भी प्रोलैक्टिन लेवल लेस देन 100 है ना, तो इधर थिंक ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनोमिया, लाइक ए फीमेल कम्स यू विद सीरियस स्ट्रेस, ठीक है, या फिर ए फीमेल कम्स यू विद इंजेक्शन ऑफ डोमपेराडोन रेगुलरली ऑन द डेली बेसिस। डोमपेराडोन डोपामिन को इनिबिट करेगा, डोपामिन इनिबिट होएगा तो पेशेंट क्या होगा? प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा। या एक सीजोफ्रेनिक पेशेंट आ रही है जो कि हेलोपेरिडोल ले रही है, तो उसमें भी प्रोलैक्टिन मार्जिनली रिलीज मिल सकता है, लाइक 80 और 100 और समथिंग, बट यूजुअली इट वोंट बी मोर देन 100। लेकिन अगर प्रोलैक्टिनोमा इट विल बी मोर देन 100, बिकॉज द रेशियो वर्क्स लाइक दैट, 1 सेंटीमीटर अगर पिट्यूटरी बढ़ती है तो 100 यूनिट से प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। तो 2 सेंटीमीटर की पिट्यूटरी है तो कम से कम 200 नैनोग्राम प्रोलैक्टिन होगा। तो अगर लेस देन 100 है, इट इज वेरी वेरी लेस लाइकली टू बी प्रोलैक्टिनोमा, इट इज मोर लाइकली ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कॉज और फार्माकोलॉजिकल कॉजेस। और वन इफेक्ट इज हुक इफेक्ट, अभी मैंने बता देता हूँ आपको, देन आई विल शो यू द फोटोज। हुक इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मली एलाइजा सैंडविच से काम करता है, जहाँ एक एंटीबॉडी है जो कि प्लेट पे पड़ी है, उसके ऊपर एंटीजन अपने डालते हैं और उसके ऊपर अपना रिएजेंट डालते हैं, दोनों के बीच में अपने एंटीजन पड़ा होता है, दो एंटीबॉडी बीच में, दैट इज नोन एज सैंडविच एलाइजा, और टेस्ट पॉजिटिव आता है अगर एंटीजन है तो, क्योंकि इट मेक्स कलर। लेकिन अपने क्या होता है, अगर पेशेंट के प्रोलैक्टिनोमा है तो प्रोलैक्टिन लेवल इतना ज्यादा होता है कि दे लिटरली मश अप दीज एंटीबॉडीज विद लॉट्स ऑफ एंटीजन, ठीक है, और फिर थोड़ी सी एंटीबॉडी ऊपर आती है तो इट इज कॉल्ड हुक इफेक्ट, सारे एकदम से हुक हो जाते हैं और प्रोलैक्टिन लेवल जहाँ 400 आना चाहिए था वहां सिर्फ
70 आता है, 40 आता है। तो ये कब आप सस्पेक्ट करोगे, जब एक पेशेंट जो कि क्लासिकल हिस्ट्री दे रहे हैं प्रोलैक्टिनोमा की, आपने प्रोलैक्टिन कराया, वो मार्जिनली रेज़ आया, आपने फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ सारे रूल आउट कर लिए। अब आप उसका क्या करा रहे हो, एमआरआई ब्रेन, और आपको 2.5 सेंटीमीटर का मास मिला है। यू थिंक यार इट इज़ प्रोलैक्टिनोमा, उसमें इनफर्टिलिटी है, उसमें गैलेक्टोरिया है, उसमें हेडेक है, उसमें विज़न लॉस है। तो अब आप क्या कराओगे, हीमोडाइल्यूशन। आप उसका खून डाइल्यूट करेंगे ताकि वो प्रोलैक्टिन इतना सारा जो गुच्छा बना के रखे हैं, वो अलग-अलग हो जाए। नाउ इट विल कॉज सैंडविच एलिजा टू बी पॉजिटिव, और अब वो जाए क्या आएगा 200 से 300 400। नाउ दैट इज कॉल्ड हुक इफेक्ट। सो आई होप, जस्ट गिव मी ए थम्स अप यार, अगर अभी तक आपका ऊपर से नहीं जा रहा, सब समझ आ रहा है और स्पीड ठीक है, प्लीज जस्ट गिव मी थम्स अप। ठीक है, एक बंदा है, बाकी सबको नहीं समझ आ रहा क्या? दो बंदों को आ रहा है। ठीक है यार, मेरे को बता दिया करो प्लीज। थम्स अप करने में यस और नो डू टाइप है ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा या आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो डू कम्युनिकेट, मैं स्लो चल लूँगा उस अनुसार। ठीक है, बट ठीक है, तो प्लीज़ डू कम्युनिकेट अगर अब बीच में आपको तेज लगे। तो फिर अब आप क्या कराओगे, आपने, मैंने बताया था हमेशा पूरी एंडोक्राइनोलॉजी में फर्स्ट कंफर्म बायोकेमिकली, देन डू द इमेजिंग। तो बायोकेमिकली आपने कंफर्म करी, इमेजिंग क्या कराओगे, एमआरआई, एमआरआई ब्रेन में आपको एक बड़ा सा पिट्यूटरी मास मिल जाएगा। नाउ आपका एक केस बन गया प्रोलेक्टिनोमा का। अनलाइक एक्रोमेगाली यू विल नॉट सजेस्ट सर्जरी है, क्योंकि सर्जरी इतनी ज़रूरी नहीं है यहाँ। केमिकल दैट इज ड्रग मैनेजमेंट से पेशेंट बढ़िया सेट हो जाएगा, रिस्पॉन्ड भी अच्छा करता है, और प्रोलेक्टिन बढ़ भी गया तो क्या हो जाएगा। I know infertility is not a easy thing to deal with. Impotence is not a easy thing to deal with. But they both do not let you die. वो आपको मरने नहीं देते. The gravity between other disease and this is hyperthyroidism can make you die. Acromegaly will eventually make you die. कुशिंग्स विल मेक यू डाई, बट ये आपको मरने नहीं देगा। सो लग्जरी आपकी लाइफ की चली जाएगी, बट यू विल बी एबल टू लिव अदरवाइज ए हेल्दी लाइफ। So इसमें you do not go for surgical treatment even if you have visual dysfunction. Always go for cabergoline first rather than bromocriptine. Bromocriptine के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग, नॉजिया, जीआई अपसेट, हाइपोटेंशन के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो गो फॉर कैबरगोलिन फर्स्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इवन दो पेशेंट का, मतलब मेरे को नॉर्मली लगता था अगर पिट्यूटरी के कारण विजुअल डिस्फंक्शन आ रहा है तो अपने को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है। इसके केस में नहीं, सिर्फ एक ही केस में, प्रोलेक्टिनोमा के केस में अर्जेंट सर्जरी की जरूरत नहीं है। कैबरकोलिन देने के 24 से 48 घंटे बाद पेशेंट को बहुत अच्छा दिखने लगता है। सो देयर इज नो सच अर्जेंसी। वन सेकेंड ना। सॉरी यार, वो एक्चुअल में मेरी टूथ की ड्रेसिंग बार बार निकले जा रही है, दैट इज द ट्रबल। सो फाइनली ट्रीटमेंट मैंने बताया, कैबरकोलिन करेंगे। इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, व्हेन indication of treatment care when patient has osteoporosis, infertility, impotency. These are the common indication of the treatment. ठीक है, सो ये अपना लगभग कंक्लूड हो चुका है। सेकेंडरी हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया क्या होता है, जैसे आप में भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम आ रहे हैं, बट आपकी एमआरआई करा ली, नॉर्मल है, बिकॉज दैट इज सेकेंडरी हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया। व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरप्रोलेक्टिनोमिया, जहाँ प्रो मतलब पिट्यूटरी से कोई प्रोलेक्टिन का सोर्स नहीं है, डायरेक्टली ट्यूमर सोर्स नहीं है, कुछ और रीजन है। जैसे मेरे स्ट्रेस भी ज़्यादा ले लेते हैं तब भी प्रोलेक्टिन बढ़ जाता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा यंग फीमेल कर रही है, जिससे आजकल बॉडी बिल्डिंग में भी फीमेल जा रही है, तो उनके अंदर लो बॉडी फैट के कारण भी प्रोलेक्टिनोमा हो सकता है, दैट मेक्स देम इन एमीनोरिया। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड बॉडी बिल्डर हो, यू कैन आस्क देम, ये बहुत कॉमन होता है उनमें कि 6 मंथ्स तक उनको पीरियड्स नहीं आते हैं। उसके अलावा द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में प्रोलेक्टिन बढ़ता है, एवरीबडी नोज दैट। तो इसीलिए आपको हमेशा सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करना आता है। अदर कॉमन कॉजेज जो आपको ध्यान रखने, सीजर्स कॉजेज, सीजर इज ए स्ट्रेसफुल स्टेट, इट कॉजेज इंक्रीज प्रोलेक्टिन। अदर इज डोपामिन ब्लॉकिंग ड्रग्स लाइक डोमपेरोडोन। इसीलिए मैं जब भी, वन सेकेंड यार, सॉरी यार, जब भी आप कभी भी प्रैक्टिस करो तो आप कभी भी
पेशेंट को डोमपेराडोन डे टू डे बेसिस पे प्रिस्क्राइब मत करो, आप प्लेन पेंटोप्राजोल, प्लेन ओमिप्राजोल प्रिस्क्राइब करो। अगर वो फीमेल है तो भी प्रॉब्लम, और मेल है तो वो प्रॉब्लम, बिकॉज ही विल बिकम इम्पोर्टेंट। इतनी जल्दी नहीं होता, सालों लगते हैं, बट ऑलवेज लाइक प्रिस्क्राइब ऑन बेसिस ऑफ नेसेसिटी। हर किसी को धड़ल्ले से पेंटोप्राजोल डोमपेराडोन मत दो, देना भी है प्लेन पीपीआई दे दो, ठीक है। हेलोपेरिडोल प्रोक्लोरपेराजिन जो कि आपका स्टेमिटल होता है, दिस आल्सो हैव साइड इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग डोपामिन, हेंस कॉजिंग इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द प्रोलैक्टिनेमिया। और एक्स्ट्रा पॉइंट, जस्ट आई हैव read a case like a 30-year-old male presenting with infertility with hypogonadism, with decreased smell, with decreased hearing. So this is a classical case of Kalman syndrome. एक क्वेश्चन आएगा Kalman से, काफी चांसेस है, बिकॉज इट इज ओवरलैप ऑफ पीडिया, बायोकेम एंड ऑल्सो आर अपना मेडिसिन। तो कैलमन के अंदर आपका इट इज एक्सीडेंट डोमिनेंट डिसऑर्डर, कैल1 का म्यूटेशन होता है। तो आपको ट्रीटमेंट क्या करना है कैलमन का, डिपेंड करता है पेशेंट का गोल क्या है। लाइक इफ द 30-year-old पेशेंट जस्ट वांट टू बिल्ड मसल बिकॉज ही हैज लेस टेस्टोस्टेरोन, वांट्स टू फील गुड, वांट्स टू फील मैस्कुलिन, तो आप टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दोगे क्योंकि उसका टीआरटी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आएगा। लेकिन अगर पेशेंट एक फर्टिलिटी अचीव करना चाह रहा है, ही इज मैरिड एंड ही इज इनफर्टाइल एंड ही वांट्स टू गेट द फर्टिलिटी, तो आपको जीएनआरएच रिप्लेस करना पड़ेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। आई विल क्विकली गो थ्रू द नोट्स मैं आपको एक बार क्विकली दिखा दूंगा। आई विल शेयर द स्क्रीन, देन यू कैन शेयर द डाउट वॉट एवर यू हैव आफ्टर द वीडियोस। सो सी, ये फिजियोलॉजी बताई है मैंने प्रोलैक्टिनोमा की। जैसे हाइपोथैलेमस से डोपामिन और टीआरएच रिलीज होता है, मेनली डोपामिन ही होता है जो कि पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन रिलीज करने के लिए। नाउ दीज आर द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी, जो कि आपको बताया लैक्टेशन का काम करना, बोन मिनरल डेंसिटी एंड ऑल। माइक्रोएडिनोमा क्या होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर का फंक्शनल बेनाइन ट्यूमर है जो कि मोर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है। साइन एंड सिम्टम क्या है प्रोलैक्टिनोमा के, मेल्स आर द ड्राई एंड फीमेल्स आर वेट और जूसी। तो मेल्स के अंदर इजैकुलेशन को कम कर देगा, रेक्टल डिसफंक्शन कराएगा, और फीमेल्स में लैक्टेशन को बढ़ाएगा और एमिनोरिया और इनफर्टिलिटी कराएगा। इम्पोटेंसी साइड इफेक्ट पढ़ लीजिए आप लोगों ने। देन आपका आएगा हेडेक, एक्ने, हिर्सुटिज्म। सीवियर केसेस में विजुअल डिफेक्ट, ये देख लो यहाँ इन फाइबर्स को अफेक्ट करेगा जो कि क्रॉस करते हैं। तो इसमें बाइटेम्पोरल हेमिनोपे, जिसको क्या बोलते हैं, टनल विजन। अब डायग्नोसिस में क्या करोगे आप, हिस्ट्री से डायग्नोसिस कर सकते हो और प्रोलैक्टिन लेवल कराओगे जो कि ज़्यादा आएंगे। अगर 100 से कम है तो आपको फिजियोलॉजिकल कॉज या हुक इफेक्ट के बारे में देखना है। हुक इफेक्ट को मैंने एक्सप्लेन करा था, यही यहाँ उसी का डायग्राम दे रखा है। द साइज ऑफ द पिट्यूटरी इज ऑल्सो इंक्रीज, ये आप देख सकते हो पिट्यूटरी का साइज बढ़ा हुआ, दैट इज प्रोलैक्टिनोमा। ये मैंने नॉर्मल फिजियोलॉजी दी हुई है जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि प्रोलैक्टिन का ऑप्टिक काइज्मा से क्या रिलेशन है। ट्रीटमेंट की इंडिकेशन, ये सारे जैसे लाइन से ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है, इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, हेडेक। सर्जरी नहीं करते, इट ओनली मेक्स यू ड्राई और वेट, डू नॉट लेट यू डाई। तो आप इसमें डोपामिन एगोनिस्ट ट्रीटमेंट के अंदर देते हो, तो आप कैबरगोलिन देते हो, ब्रोमोक्रिप्टिन देते हो। ब्रोमोक्रिप्टिन का साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन और जीए अपसेट, इसलिए कॉमनली फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है। और सेकेंडरी हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया के कॉजेज, जस्ट वेट अ सेकंड, ये ना, हाँ, सेकेंडरी हाइपरप्रोलेक्टिनोमिया कॉजेज देखो, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप और सीजर, ये सब आप एनकाउंटर करोगे जब आप फिजिशियन बनोगे। तो आपके पास ऐसी आएगी, गांवों में भी बहुत आजकल यंग फीमेल्स बहुत अच्छा एथलेटिसिज्म करती है, तो उनमें भी स्टर्नेस, एक्सरसाइज एंड लो बॉडी फैट प्रोलेक्टिनोमा होता है। प्रोलेक्टिनोमा नहीं होता, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया होता है। और सीजर के अंदर भी प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ेगा, डोपामिन एंटागोनिस्ट जैसे हेलोपेरिडोल, मेटोक्लोप्रोमाइड में भी बढ़ेगा। सिमेटिडीन आपने पढ़ा हुआ है।
फिर हाइपोथायराइडिज्म में टीआरएच ज़्यादा होने के कारण, और सीएलडी का आपको पता है, सीएल लीवर का पेशेंट इंपॉर्टेंट होता है, वो इसी रीजन से होता है. दीज आर द पॉइंट्स. दिस इज ए हिस्ट्री ऑफ Kallman syndrome. 27-year-old male with infertility, with anosmia, with color blindness, X-linked dominant disorder है, lack of migration of gonadotropin, treatment depend on the cold. If पेशेंट वांट टू बिकम फर्टाइल तो आप जीएनआरएस दोगे, वांट टू फील गुड तो आप सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दोगे. सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर. आई होप यार कि आपको ये समझ आया है. अगर कोई भी डाउट है तो आई विल फर्स्ट क्लोज द रिकॉर्डिंग, देन यू कैन फ्रीली डिस्कस. कोई भी डाउट है यू कैन शेयर मी. जस्ट गिव मी ए थम्स अप की स्पीड ज़्यादा नहीं लगी है, समझ तो आया, ऊपर हवा से ऊपर तो नहीं गया. ठीक है, हाँ छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोलैक्टिनोमा. मैंने कोशिश करे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं. फिर भी कोई डाउट है जस्ट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन वी विल डिस्कस. सो गुड नाइट एवरीवन यार, टेक केयर. कोई भी डाउट हो फील फ्री टू डिस्कस एंड कॉल मी.